I welcome you all to this today's webinar. The webinar that is Success Through Spirituality that is being organized in association with Saraswati Group of Medical and Dental Sciences. So let me introduce our today's eminent speakers. Today we have four eminent speakers in the spiritualism area. Saraswati Maharaji is one of the greatest spiritual leaders of modern India. He is very much known for his message of universal love, compassion for all humanity, and social reforms without giving up the nationalist zeal, the love of motherland. According to Swamiji Maharaj, this is an era of universal awakening, universal realization, universal conciliation, and spiritualism. We welcome you, Swamiji Maharaj, in this spiritual session. We have Shri Anant Bodh Chaitanya ji with us. He is Director, Anant Bodh Yoga, Lithuania. He is spiritual counselor and trustee in Shri Govind Mutt Trust. His convention represents the luminary lineage of the great enlightened saints and yogis that renounce their homes at an early age in the search for supreme truth, giving up all the worldly ties and aspirations. We welcome you, Anant Bodh Chaitanya ji, to this spiritual session. We have Dr. Anil Kumar Singh, IAS, with us today in this session. He is Special Secretary, Home Government of UP, Lucknow. He is PhD in Sanskrit from BHU. He has served many positions, Special Secretary to Urban Development, has been DM and collectors during 2018 and 20 before elevation to this post. We have JP Singh, IPS, with us to this spiritual session. IGP, Armed Police and Training Shimla. JP Singh ji having a keen interest in spiritualism, and according to him, spiritualism has a great role in human success and development. We welcome you, sir, to this today's webinar, spiritual session with us. We have Dr. Rajat Mathur, sir. He is the Chancellor of AP Goel Shimla University and Chairman, Saraswati Group of Medical and Dental Sciences. Sir will be the moderating of this session. We welcome you, sir, to this spiritual session. You always with us for your kind support and guidance. I would request our Dr. Ramesh Kumar Chaudhary, sir, our Honorable Vice Chancellor, to please have some welcoming notes, remarks before we start this spiritual session. Sir, please, over to you. Om Namo Narayan. Today's all August participants, it's a broad privilege that AP Goel Shimla University is before you with a unique title, Success Through Spiritualism, अध्यात्म से सफलता की ओर. Or I feel myself fortunate to welcome Swami Pranav Anand Saraswati Ji Maharaj Mahamandaleshwar, Anand Bodh Chaitanya Ji from Lithuania, and you will find a uniqueness that two other Mahatmas, though they are bureaucrats, but I will like to call today's session, they are sent. Sri JP Singh Singh Sahab, IPS, and Anil Kumar Singh Ji, IAS from UP. आज इस परम आनंद में आप सबों का स्वागत है. हम आज हमारे बीच में चार महात्मा हैं, चार संत हैं, चार, इसीलिए मैंने इसको वेब सत्संग का भी नाम दिया है. एंड थोड़ा सा ये प्रोग्राम और हिंदी और इंग्लिश में होगा.
because we have a lot of international participants. I'm looking Dr. Tony Atkins from United Kingdom. Before me, he's here to listen us, and you can understand that a lot of international participants are also joining. But of course, because of certain things, we will have to be, because other people have also joined, so it will be a mix of Hindi and English. और पूरी एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की, और इसमें हमारे चांसलर साहब जो डॉक्टर रजत माथुर जी का जो ऑरा है, उनका जो पॉजिटिविटी, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो काफी काम आया. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट I believe that spirituality is the biggest power in this hard time and in any time of your life. Only you require to have a belief in the God, whosoever whom God is the same. आप किसी को मानते हैं, it doesn't matter, but you believe a power which is almighty, and I have a strong belief, and I believe that if you believe on the almighty, you will always achieve success. Just मेरा तो बड़े बड़े महात्मा है, बताएंगे, मेरा तो एक ही है, जो बस परमात्मा पर निर्भर रहो. परमात्मा अपने भक्त की लाज हर वक्त रखते हैं, और वो भक्त का बुरा और भला सब समझते हैं. तो मैं तो बस इतना ही, मैं बड़ा अधकचरा और झूठा ज्ञान है, तो मैंने इसी बातों को लेके आप लोगों के बीच में हूँ. और दैट आई हैव ट्राइड टू वर्क एट द एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी. वंस आई हैव टेकन ओवर द चार्ज, आई फाउंड दैट there is a temple, but there is no deity in it. So the first resolution I made, I am very happy to share with the August gathering. अभी एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी में हमने माँ दुर्गा का मूर्ति का अनावरण किया है, और वो पिछले नवरात्रा में हम लोगों की थी, लेकिन आपको पता है जो पेंडेमिक ने, everything has been deferred. So I'm really happy and delighted to share with you. And with all these things we always feel positive vibrations. तो मैं बिना वक्त गमाए हुए अपने जो मूर्धन्य विद्वान है, जो संत समाज आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके आशीष के अपेक्षा के साथ, जो उनका आशीर्वाद हमारे संस्था पे, हमारे विश्वविद्यालय, पूरे समाज पे, शिमला शहर पे, हिमाचल प्रदेश स्टेट पे, और इस पूरे भारत पे, पूरे विश्व पे उनका आशीर्वाचन होगा, और हम सब इस हार्ड टाइम से निकलेंगे और अपने अपने जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे. और एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी पे आप सभी साधुजनों का आशीर्वाद बहेगा, और एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी में पॉजिटिविटी, सार्थकता आएगी. इन्हीं शब्दों के साथ आई विल बी रिक्वेस्टिंग टू ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर रजत माथुर जी टू टेक ओवर द वेब सत्संग which has ready to move on. Dr. Rajat Mathur साहब, सर. थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीसी साहब. आज का जो ये वेबिनार है, ये अपने में एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है. इट्स अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ, बिकॉज इन दीज टेस्टिंग टाइम्स, if somebody has to root himself, it is only through religion and through God that a person can root himself. अपनी जड़ों को देखते हुए और अपने को मजबूती से खड़े रखने के लिए केवल आध्यात्म और ईश्वर का ही सहारा इन दिनों रह जाता है. तो सबसे पहले तो मैं सभी छोटों को और सभी बड़ों को हार्दिक प्रणाम करता हूं, और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप इस वेबिनार में सम्मिलित हुए. इस प्रक्रिया से, सिर्फ इस प्रक्रिया से कि आप इसमें सम्मिलित हुए, दिखाता है कि आप कितना भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं. आज के 4 वक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी और सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को और हमारी पूरी फैमिली को अपने आशीर्वाद और अपने आशीर्वचन से हम लोगों को कृतज्ञ करा. सबसे पहले मैं
स्वागत करता हूं स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी का और उनका सबसे पहले आशीर्वाद ग्रहण करने की अपेक्षा रखता हूं और स्वामी जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों को दिशा निर्देश बताएं ये अध्यात्म से सफलता की ओर हमारे जो बच्चे हैं ये क्या ऐसी चीज करें जिससे आध्यात्म को नजर रखते हुए सफलता की ओर वो चलें। स्वामी जी प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तमसो मा ज्योतिर्गमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में हमारे आदरणीय स्वामी श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर जीपी सिंह जी, श्रीमान रजत माथुर जी, डॉक्टर आर के चौधरी जी तथा समस्त इस मीट में जो आए हुए मेरे सभी मित्रगण, आज बड़ा ही सौभाग्य है इस विश्व के संकटपूर्ण स्थिति में एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का आश्रय लेते हुए हम सभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। आज का विषय है अध्यात्म से सफलता की ओर कैसे जाया जा सकता है। एक सामान्य सूत्र है, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन, सफलता आदि का भाव मन में न रखते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, कभी वो पुरुषार्थ नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है। चाहे वो रोड पर भीख मांगता हुआ भिखारी हो, चाहे वो वोट मांगता हुआ राजनेता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सफलता मिले। और वो सफलता को हम यदि संक्षेप में कहना चाहे तो एक बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन पहनने को वस्त्र हो और खाने को भोजन मिले, और अतिरिक्त आज के संदर्भ में गाड़ी, मोबाइल, टेलीविजन, ये बहुत सारी चीजें, और ये चीजें बेहतरीन नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, तो ये सारी चीजें व्यक्ति सोचता है अपने जीवन में कि ये मिल जाए और इसको ये सफलता समझता है। तो एक सामान्य हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो सफलता क्या है, तो इसकी सार्वभौम कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते कि इसको सफलता बोलते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सफलताएं हुआ करती हैं और उस सफलता के मापदंड भी अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि 1 लाख रुपए मिले तो मैं सफल हो जाऊंगा, कोई 10 करोड़, कोई अरब, इस प्रकार उसकी सफलताएं बदलती जाती और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सफलता होती है। इसीलिए सफलता का अर्थ मेरे दृष्टि से इतना ही है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। अब वो आप क्या चाहते हैं, वो आपकी योग्यता, आपकी रुचि, आपकी प्रवृत्ति, आपका पुरुषार्थ उस पर निर्भर है। वो आपको जो मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं सफल हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति की सफलता मिलकर एक विराट सफलता, एक राष्ट्रीय सफलता में बदल जाती है। एक व्यक्ति के विकास से राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र के विकास से बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसका उस विकास का दुनिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जो सफलता है कुछ बनने की, इसके मूल में क्या है,
हम जब मानवीय लोगों के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो हर आदमी चाहता है, इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। एक छोटा सा आदमी भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, बिना श्रम बिना पुरुषार्थ किए नहीं रहता है, और उस पुरुषार्थ का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे को सफलता मिले। तो उस सफलता के मूल में क्या है, हमारे जीवन में हम सफलता को कैसे पाए, हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र, अपना विश्व हम कैसे सुधारें। तो इसके मूल में तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, परिश्रम, कठोर परिश्रम, और दूसरा एकाग्रता, और तीसरी नैतिक मान्यता, जिसको हम भगवान, जिसको धर्म, जिसको आत्म संयम बोलते हैं। ये तो निर्विवाद सत्य है कि जीवन में सफलता को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना किए दुनिया में कुछ भी पैदा नहीं होता। आप बिना किए ऐसे निठले बैठे रहे तो आप एक सुई भी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जितनी योग्यता है उससे अधिक परिश्रम करना चाहिए, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जब पुरुषार्थ करते हैं परिश्रम, तो वो परिश्रम हमारा ऊर्जा में बदल जाता है। एक किसान जब वो परिश्रम करता है तो अनाज में उसका परिश्रम बदल जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो शाम के समय उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो श्रम उसके अर्थ में बदल जाता है। एक कोई शिक्षक पढ़ाता है तो उसको वेतन मिल जाता है। तो ये दुनिया में जो भी कुछ हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो एक ऊर्जा में बदल जाता है, और उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। वो ऊर्जा माने हम अर्थ के रूप में, ऊर्जा हम बौद्धिक क्षमता के रूप में भी हम इसको नाप सकते हैं। जब एक विद्यार्थी श्रम करता है तो बौद्धिक ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाती है। और एक दूसरा सूत्र है, कठोर पुरुषार्थ के साथ साथ हमें एकाग्रता की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम कितना भी पुरुषार्थ करें, यदि हमारे पुरुषार्थ के साथ एकाग्रता नहीं है तो हमारा श्रम बिखर जाता है। एक व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, कभी वो साइंस पढ़ रहा है वो पुस्तक छोड़ करके, कभी वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है उसको छोड़ कर, और कुछ कर रहा है उसको छोड़ के, और तो उसकी जो एकाग्रता है वो उसके श्रम को विभाजित कर देती है। इसलिए श्रम में ऊर्जा को पैदा करने के लिए एकाग्रता को उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे बड़ा सा बड़ा, उसके काम के साथ एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए एकाग्रता जब श्रम के साथ जुड़ जाती है तो वो श्रम कई गुना अधिक हो जाता है। मैं इस बात को और संक्षेप कर देता हूं। ये दूसरी चीज एकाग्रता, और इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए और हमारे अंदर आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक है आत्मसंयम। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में ऐसी कोई शक्ति जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। हमें हमेशा ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई है। क्योंकि कई बार हमारे बड़े से बड़े लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक है, जो राजनेता है, और भी बहुत सारे लोग, वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और वो हताश निराश हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक कोई चीज हमारे अंदर होना चाहिए जो हमारे साथ हो और हमारा अकेलापन वो दूर कर दे। और वो है ईश्वर, वो है भगवत आश्रय। जब हमारे अंदर भगवत आश्रय होगा तो हमारी एकाग्रता अनंत गुना वो फल प्रदान करेगी। हमारा परिश्रम और दुगुनित हो उठेगा और हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो सफलता आध्यात्मिक हो, चाहे वो सफलता भौतिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सफलता के जो मापदंड है वो सारे एक होते हैं। क्योंकि कोई आध्यात्मिक आदमी भी अपने जीवन में सफलता को पाना चाहता है तो वहां पर भी परिश्रम, वहां पर भी कठोर परिश्रम है। इसीलिए सन्यासी के लिए हमारे शास्त्र ने एक शब्द का प्रयोग किया, यति। यति माने जो प्रयत्नशील है, जो निठल्ला नहीं है, जो निकम्मा नहीं है,
जो अपने लिए आत्मनो हितार्थम जगत हिताय च, जो अपने लिए और समाज के लिए, अपने लिए और वो राष्ट्र के लिए जो श्रम करता है, यत्न करता है, वो सन्यासी है। तो ये आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है हमें ईश्वर आश्रय ग्रहण करना। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आ- जब हमारे अंदर जब ईश्वर का आश्रय होता है तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज है। मैं अभी एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं। हमारे शास्त्र में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि हम अपने एकाग्रता से, कठोर पुरुषार्थ से कोई चीज पैदा करते हैं, कोई हम ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को हम उचित दिशा में हम कैसे लगाए, ये उचित दिशा में लगाने के लिए जो हमारे अंदर नैतिकता का बल चाहिए, जो आत्म संयम का जो बल चाहिए, वो ईश्वर से मिले, वो धर्म से मिले। कई बार हम बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर होने के बाद भी, हम बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी होने के बाद भी, हम बहुत कुछ पैदा करने वाले होने के बाद भी हमारे अंदर की जो संयमहीनता के कारण, अनैतिकता के कारण हम अपने ही उस शक्ति के द्वारा हम स्वयं समाप्त हो जाते। एक उदाहरण है भस्मासुर का। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हमको एक वरदान दो। भगवान भी बड़े प्रसन्न थे सेवा से और उन्होंने बोला कि मांगो क्या चीज। तो उन्होंने मांगा कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, शक्ति मिली उसको। तो उसने सबसे पहले सोचा कि मैं इसका प्रयोग करके देखूं। अब वो प्रयोग करने के लिए दूसरा व्यक्ति कहाँ से लाए, तो उन्होंने भगवान शंकर की सिर पर हाथ रखने के लिए सोचा और भगवान शंकर भागने लगे। भागते गए, आगे भगवान विष्णु आए और उसके बाद फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और वो भस्मासुर मोहित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों पहले डांस कर लेते हैं, नाचते हैं और उसके बाद फिर हम लोग शादी करेंगे। और वो नृत्य कर रहे थे। नृत्य की मुद्रा में उन्होंने अपना हाथ मोहिनी ने अपने सिर पर रखा और उसको देखते देखते भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसी समय वो भस्म हो गया। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन वो मैसेज है इसमें। वो भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया था लेकिन उसने अपनी नासमझी के कारण उसको अभिशाप में बदल दिया। ऐसे हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं लेकिन नैतिकता के अभाव में उन शक्तियों को हम जीवन के विकास में वरदान नहीं बना पाते हैं और वो शक्तियां ही हमारे लिए विनाशक बन जाती हैं और हमको स्वयं को खत्म कर देती हैं। इसलिए ईश्वर बहुत जरूरी है। इसलिए आत्म संयम बहुत जरूरी है। आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। और जब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर न हो तब तक हम विकास के चरम लक्ष्य को प्राप्त करके भी हम जमीन में उतर सकते। इसलिए सफलता को पैदा करना और उस सफलता को बनाए रखना, ये दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। पैसा कमाने की अपेक्षा उस पैसे के संरक्षण की ज्यादा जिम्मेदारी होती है और पैसे के संरक्षण का काम ज्यादा कठिन होता है। बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, उसका संवर्धन नहीं कर पाते। इसलिए किसी साधक को अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए और उस उपलब्धि को जीवन में बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर परिश्रम, एकाग्रता और ईश्वर का आश्रय। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे अतिथि हैं और भी बोलने वाले। एक बार की बात है, एक कोई युद्ध का प्रसंग है। कहीं युद्ध, एक मोर्चे पर कोई युद्ध हो रहा था और इस युद्ध के मोर्चे पर सेना हारती जा रही थी और बहुत कम सैनिक बचे हुए थे और उसका कमांडर बचा हुआ था और वो सारे सैनिक एक जगह पर बैठ करके सोच रहे थे कि अब हमको क्या करना चाहिए। कमांडर बड़ा बुद्धिमान था तो वो भी सोच रहा था कि हम इतनी छोटी सेना लेकर हम विजय हासिल नहीं कर सकते, हमारा हारना तय है, अब क्या करना चाहिए। तो सब लोग विचार करने लगे कि अब हम मोर्चा छोड़ के चले जाए या तो निश्चित है यहाँ लड़ते हुए मारे जाए। लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान था, वो कमांडर। उन्होंने सोचा कि अब हमें इन छोटे से सैनिकों से विजय हासिल करना है। उसका ईश्वर पर भरोसा था
और वो बड़ा बुद्धिमान था, उनके पास एक सिक्का था, उन्होंने कहा भैया ये मेरे पास सिक्का है और ये तुम एक इसका चयन करो, तुम चित लोगे कि पट लोगे, सीधा लोगे कि उल्टा। उन्होंने सीधा लोगे तो हमारे साथ ईश्वर है, हम जीते, और तुम उल्टा लोगे तो समझ लो कि हमारी हार निश्चित है। और उन्होंने पक्ष लेके उसको उछाला और सीधा निकला। कमांडर और सारे सैनिक बड़े प्रसन्न हो गए और वो युद्ध की मोर्चा पर गए, डटे और लड़ाई उन्होंने भयंकर लड़ी और वो जीत गए। वो जीतने के बाद सभी लोग एकत्रित आ गए, बहुत खुशियां मना रहे थे। और उस समय सबने कमांडर को पूछा कि इस जीत का रहस्य क्या है। कमांडर ने कहा कि देखो, इस जीत का रहस्य है ईश्वर, इस जीत का रहस्य है आत्मविश्वास। उन्होंने कहा कि तुमको ऐसा लगा कि ईश्वर हमारे साथ है, और क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने वो उछाला था सिक्का, लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने वो सिक्का निकाल करके उनको दिखाया, दोनों तरफ एक जैसा सिक्का था। वो दोनों तरफ एक जैसा था, वो कैसे भी उछालते हैं तो दोनों तरफ वो सीधा ही होने वाला सिक्का था। लेकिन उस सिक्के के उछालने से उस सेना नायक में और सैनिकों में ऐसी शक्ति आ गई, आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा जगा, और वो आगे बढ़ गए। इसीलिए ईश्वर है कि नहीं है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम ईश्वर के ऊपर आस्था रखकर हम अपने अंदर की शक्ति हम जगाते हैं, आत्मविश्वास को जगाते हैं, और हम अपने अंदर के एकाकीपन, अकेलेपन को दूर कर हम अपनी शक्ति को बहुत हम अपने परिश्रम के साथ आगे ले आते हैं। ये हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, हमारा कठोर परिश्रम, एकाग्रता, इसका एक समन्वय। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वर पर भरोसा करे, जीवन को आत्म संयमी बनाए और कठोर पुरुषार्थ एकाग्रता के साथ हम जीवन की सफलता को पाए और उस सफलता को अपने जीवन में बनाए रखे। मैं संक्षेप में ये सारी बातें आपको सुना दी। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ अतिथिगण हैं, सबको मैं बहुत बहुत वृंदावन की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस छोटी सी मीट के द्वारा अपने जीवन के सूत्र हम सीखे और उन सूत्रों पर अपने जीवन को चलाकर हम अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की जो उच्चतम सफलता है वो प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात हम लोगों को समझा दी। इसका शब्दों में मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, हु वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड because of the language issues, the crux of what Swamiji said was that for success one has to put labor and effort, one has to be just, one has to be focused, one has to be self-confident, and one has to dedicate himself and believe in God. Only then can you achieve true success in life. स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आशीर्वाद देने। प्रणाम। Now we will move on to our second speaker, Shri Anand Bodh Chaitanya ji. Anand Bodh Chaitanya ji is joining us from Lithuania. आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद बोध जी। कुलदीप जी प्लीज आनंद बोध जी को अनम्यूट करिए। जी यस सर। नमो नारायण। पूज्य स्वामी जी, महामंडलेश्वर स्वामी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। और हमारे कुलपति जी, माथुर जी, आपको भी, और हमारे अन्य जो स्पीकर हैं, यद्यपि मेरा उनसे ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन उनको भी मेरी तरफ से सभी को प्रेम हरिसिमरन। और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर रमेश चौधरी जी, who
invite me today to join this session. So I'm very happy to be here, and today the topic is spirituality, how we can get success through spirituality. Of course, we can achieve success, and जैसा कि स्वामी जी ने बताया, सक्सेस विभिन्न प्रकार की होती है। लोगों के लिए सक्सेस के पैमाने अलग अलग हैं। एक छोटे बच्चे के लिए, मैं एक दिन मैसेज पढ़ रहा था, एक छोटे बच्चे के लिए वो स्कूल चला जाए, स्कूल तक ही चला जाए और वापस सही सलामत आ जाए बिना कपड़े खराब किए, यही उसके लिए, और बिना भूले रास्ता भूले भटके, यही उसके लिए एक सक्सेस है। और इसी प्रकार छोटा बच्चा जब धीरे धीरे जीवन में आयु के हिसाब से उसका बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसी के हिसाब से उसके सक्सेस के पैमाने बदलते हैं। बच्चे को खिलौना मिल जाए, किसी ने आजकल तो खिलौने भी, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, उसके लिए वही एक सक्सेस हो जाती है फॉर टाइम बीइंग। तो लेकिन यहाँ जो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म से हम किस प्रकार सफलता पाएं, इस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं आज। देखिए, यहाँ मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा आज, और जिनके पास कॉपी पेन है, काइंडली वो लिख भी सकते हैं। Those who would like to note it down, they can write it. There are 5 points what I am going to talk. The first point is, Swamiji also discussed about this Purushartha. But in Purushartha, we have 4 Purusharth in our life: Dharma, Arth, Kama, Moksha. तो सबसे पहले तो हमें we should know, find ourselves and find purpose of our life. देखिए, पर्पस, जब तक हमारे जीवन का ध्येय हमें नहीं पता होगा, ये जो परम पुरुषार्थ अध्यात्म में जिनको परम पुरुषार्थ बताया, मोक्ष कहा, मोक्ष अध्यात्म में परम पुरुषार्थ माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, ये 3 सेकेंडरी हैं, लेकिन मोक्ष परम पुरुषार्थ है। सो एक आध्यात्मिक आदमी के लिए तो मोक्ष उसके लिए पुरुषार्थ है, और जो एक सांसारिक आदमी है, मैं नहीं कहता कि प्रत्येक आदमी ही आध्यात्मिक हो, वैसे देखा जाए तो प्रत्येक आदमी आध्यात्मिक है। बिकॉज अध्यात्म है क्या? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, आपका स्वभाव ही अध्यात्म है। और अध्यात्म, यदि संस्कृत में अध्यात्म शब्द को देखें, आत्मनि इति अध्यात्मा, भाई आत्मा में जब आपको अपने में जाएंगे, जो ही आप अंतर्मुख होंगे, और आत्म संयम, जिसे मनन, निदिध्यासन, आत्मालोकन, ये बहुत सारे वेदांतिक शब्द हैं, वेदांत में इनका वर्णन आता है, मनन, निदिध्यासन जो हैं। आज के समय में उसको हम सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं। भाई यदि हम अपना आत्म मूल्यांकन करें, अध्यात्म की दृष्टि से आत्म मूल्यांकन न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि आपका बिजनेस हो, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक खिलाड़ी हो, या आप कोई भी फील्ड में हो, doesn't matter in which field you are, if you can evaluate yourself properly, you can think what is good, what is bad in your profession. जब तक आप वैल्यूएशन नहीं करेंगे, करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, तब तक आपको अपने बारे में वास्तविक जानकारी नहीं होगी। अभी भारत में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में ही कोरोना महामारी का इतना प्रकोप है, इस दृष्टि से देखा जाए तो बाहर आप नहीं जा सकते, कम से कम अंदर तो जा सकते हैं। अंदर माने अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, और आप पाएंगे कि अपना गोल, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, प्रत्येक आदमी के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि
धन पाना है, किसी का लक्ष्य नौकरी पाना है, किसी का लक्ष्य ऐसा भी होता है कि शादी करना हो, किसी का लक्ष्य बच्चे पाना हो। प्रत्येक के लक्ष्य टाइमिंग ये भिन्न हो सकते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य का पता है तो आप पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को ही नहीं जानते तो वहां क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ हु यू आर, और दिस इज द माय फर्स्ट पॉइंट। अध्यात्म में अपने आप को जानना ही अध्यात्म है, और यहां से ही आपकी ये समझिए यात्रा शुरू हो जाएगी। यदि आपने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया और जान करके यदि आप में कुछ कमी है तो उनको उभारने का, अपने को बढ़ाने का, अपना ये समझिए आप किसी प्रकार भी अपने को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का। देखिए, उन्नति ही धर्म है। महर्षि कणाद ने स्पष्ट कहा, यत्रो अबुधेय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जहां कहीं भी अबुधेय और निश्रेय सिद्धि का मतलब मोक्ष आदिगम, जहां आप निश्रेय सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, और उन्नति सब प्रकार की, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जहां तीनों प्रकार की उन्नति और आप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो ले जाए वही धर्म है। तो अपने धर्म में स्वधर्म निधम श्रेय जैसा कहा, यहाँ धर्म से तात्पर्य केवल किसी रिलीजन को नहीं मैं बोलता हूँ यहाँ, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात की उसमें तो अन्य कोई रिलीजन था ही नहीं और ना उसकी कोई कल्पना थी। और देखा जाए तो मानवता ही एक प्रकार से धर्म है, और हम यहाँ धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहे, यद्यपि हम स्पेशली एक धर्म से जुड़े हुए हैं और निश्चित ही वी आर प्राउड टू बी हम, लेकिन फिर भी हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं। और अध्यात्म के हिसाब से आप जिस भी फील्ड में हैं, आप एक खिलाड़ी हैं तो अपने को अपनी जो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्मसु कौशलम योगा कर्मसु कौशलम, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कुशलता से कर सकें, उसको और अच्छे से करने का प्रयत्न करें। मेरा आई एम गोइंग ऑन माय सेकंड पॉइंट, गिव योर बेस्ट और गिव योर 100% when you find your goal in your life, or goal means you should know what really you can do। यदि आप कुछ भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हैं, जैसे आप एक खिलाड़ी हैं और आपको पता है कि आप अच्छा खेल सकते हैं, तो उसी को इतना निखारिए कि आपको आपका व्यवसाय बन जाए। अब देखिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के अनेक खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसी में अपना जीवन में उन्नति पाई, सक्सेस वही उनके लिए सक्सेस है। और देखा जाए तो अब कोई गायक है तो गाने के क्षेत्र में आप अपना पहले तो ये देखिए कि आप किस चीज में आगे आ सकते हैं। विद्यार्थियों में भी कोई विद्यार्थी है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसकी रुचि उसमें है, यदि उसमें उसका मन है और उसमें पूरी ऊर्जा दे करके, जैसे स्वामी जी ने कहा अपना पूरा परिश्रम और डेडिकेशन, एकाग्रता, ये सारी चीज लगा करके उस फील्ड में आगे बढ़े जिसमें वो बढ़ने की उसकी संभावना है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। एक जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की परीक्षा देता है वो उसी में अपने सिविल सर्विस की पूरी तैयारी में मन लगा कर नहीं करेगा तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ जो जैसे अभी हमारे अन्य दो स्पीकर हैं, वो एक IPS है और दूसरे IAS है, तो उनको पता होगा कि कितना मेहनत उन्होंने किया होगा और कितनी मेहनत करनी जरूरी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं मिलता। हमारे यहाँ साधु में कहावत है, बिना मेहनत के मेहनत कोई नहीं बनता। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर 100%। यदि आप अपना 100% किसी भी फील्ड में देते हो, वो चाहे आपके एग्जाम की तैयारी हो, वो चाहे आपके जीवन की भी हो, यदि आप एक अच्छे आदमी बने तो 100% अच्छे आदमी बन के दिखाएं। यही वो कर्मसु कौशलम का भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा एक सुंदर चाबी दे दी, भाई कुशलता से करो, कुछ भी करो। आप झाड़ू में लगा रहे हैं तो उसको इतनी स्पाइस से लगाओ कि आने वाला कहे क्या क्या अच्छी झाड़ू लगाई है, ताकि लोग जाने, आपके जाने के बाद वर्षों बाद, आज भगवान श्री कृष्ण को 5000 साल से ज्यादा हो गए, आज भी हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है? तो उन्होंने कुछ भी किया है तो उसको उस कुशलता से किया है, उनके अंदर वो स्किल थी, उन्होंने पूरा 100% अपना दिया, तभी वो आज तक हम उनको याद करते हैं। भगवान राम हो या गुरु नानक देव हो या जितने भी हमारे आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं,
उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। वो 10 जगह नहीं थे, वो बिखर के नहीं जिए, वो एकाग्र होके जिए। तो अध्यात्म में यदि उन्नति का, अध्यात्म से उन्नति का जो मार्ग है, वहां एकाग्रता और पूरा मेहनत, पूरा, जिसको इफ यू कैन गिव योर 100%, लाइक गिव योर बेस्ट, यूज एवरीथिंग whatever you have available, you will achieve success. This is my second point what I want to talk to you today. And now there is third point, awareness. Now I'm coming on third point, awareness. Awareness से मतलब जागरूकता। आप जहां हैं, जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, where you are, doesn't matter which religion you have or which god you follow, or it doesn't matter, but if you are aware about your duties and about your rights. Nowadays the problem is people want only rights, they want, उनको अपने अधिकारों का तो पता है, उनको पता है कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, दे हैव, उनका राइट है। एक नागरिक को पता है कि उसका रास्ते पे जाना उसका राइट है, but they are not following their duties. Until you will not make a balance between your duty and rights, I don't think so. If you will achieve any success also, this success will not give you fulfillment. This success will not, आपको मैं बताऊं, आपने ठीक है धन कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, विजय माल्या का उदाहरण मैं देता हूं, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जीवन में उन्नति, जो लोग जिसके बारे में कल्पना करते हैं वो उन्होंने पाई, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, इसलिए अध्यात्म हमारा कहता है, अध्यात्म कहता है कि राइट, श्रेय और प्रेय, यहां श्रेय और प्रेय, कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग आपके सामने आएंगे, प्रिय, प्रिय लगने वाले मार्ग, और श्रेय, श्रेयस्कर मार्ग। तो चूज आपको करना है। तो प्रिय लगने वाली चीजें जरूरी नहीं है सारी अच्छी दिखने वाली चीजें वो श्रेयस्कर भी हों। तो जीवन में बुद्धिमत्ता से यदि आप अवेयर हैं, क्योंकि एक लाइफ में हमारे जब टीन एज होते हैं या एक यंग जब एज होती है, जब आपके पास धन होता है, पद होता है, whenever you are sitting on a high post and you can give decision, you can take a decision, so you have to be aware about your decision, not only for you but also this society where you are living, this country, or among those people who can be affected by your decision. You know, sometimes one person can take a decision because he has power to take decision, but it doesn't matter this decision is good for or bad. इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। कभी कभी अब मैं कई बार सोचता हूं, भारत में भी ये कोरोना को लेके देख लीजिए, यदि भारत सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया था लॉकडाउन का, मैं बिल्कुल सहमत था, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा सा यदि व्यवस्थित तरीके से लिया होता, थोड़ा सा, देखिए मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना ये आज का बोलने का वो है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिसीजन अवेयरनेस के साथ लिए जाएं, जागरूकता के साथ लिए जाएं। तो ये अब जो हमारे अध्यात्म कहता है, यदि आप अवेयर हैं, अवेयरनेस मीन्स बियॉन्ड योर माइंड, आप अपने माइंड का क्या करते हैं लोग, अभी आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप बैठे जरूर हैं, बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई सब्जी बनी नहीं बनी, किसी के मन में होगा गाड़ी की सर्विस हुई नहीं हुई, किसी के मन में होगा सैलरी नहीं आई, 7 तारीख हो गई, माने दिमाग कहीं और होगा। जब आप अवेयर हैं, आप कहीं भी हैं, जिस पोस्ट पे, जिस जगह पे है, जहां भी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस का मतलब 100% आप वहां हैं, तन मन और पूरी एनर्जी के साथ किसी भी क्षेत्र में अवेयर होकर के आप जुड़ते हैं। जैसे हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन सुख दुख का एक प्रकार से सुख दुख की इंद्रिय का साधन मन है, लेकिन मन आपका बहुत सारी चीजें
जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे का मन प्रबल होता है और जब बड़ा होता है तो बुद्धि प्रबल होती है। तो बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। यदि आप बुद्धि से निर्णय लेंगे, हाँ, तो आपका निर्णय शायद बेटर होगा, मन से बेटर होगा। लेकिन उसके बाद भी चित्त और अहंकार और इनके बाद भी अंतःकरण चतुष्टय का जो हमारी अध्यात्मता में, जब अंतःकरण चतुष्टय, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है। स्वच्छ तब होता है आपकी इंटेंशन के ऊपर। देखिए एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी काटता है, और एक डाकू या कोई हत्यारा वो भी काटता है। दोनों के हाथ में सीजर है, नाइफ, कुछ भी होता है, लेकिन इंटेंशन अलग है। तो एक डॉक्टर का इंटेंशन है उसकी लाइफ बचाना। सो यहाँ जब आप, ये अंतःकरण आपका पवित्र है किसी भी क्षेत्र में, और आध्यात्मिक आदमी का अंतःकरण पवित्र होता है। वो दूसरे का गलत नहीं करना चाहता, वो किसी के कंधे पर पैर रख करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो दूसरों को भी लाभ देना चाहता है, उस दूसरों को साथ लेके चलने की उसकी, जैसे हमारे, मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहता हूँ, हमारे अभी डॉक्टर साहब जो वाइस चांसलर है वर्तमान में आपकी यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर ये विशेषता है, वो दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ने की उनकी एक कला है। और ये जब आपके पास आती है किसी के जीवन में भी, ये आपका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव ये अध्यात्म है। तो इसके बाद मैं चौथा पॉइंट आपको बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड एंड जेनरसिटी। यदि आपके अंदर, यदि आप थैंकफुल नहीं हैं जो आपके पास है, जो सोसाइटी ने दिया, या माता पिता से मिला, या आपको समाज से मिला, कैसे भी किसी प्रकार भी, वी हैव टू बी थैंकफुल। हमारे मित्रों के प्रति हमें धन्यवादी होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति। तो हमें, हमारे अंदर ये धन्यवाद, कृतज्ञता जिसको कहेंगे हिंदी में, ये अवश्य होनी चाहिए। और जो आध्यात्मिक आदमी है, आध्यात्मिक आदमी के स्वभाव में कृतज्ञता होती है। और जो कृतज्ञता लोग हैं वो आगे बढ़ करके, बहुत आगे बढ़ जाएं, कहीं भी बढ़ जाएं, तो वो अपने जो जितने भी जिनके द्वारा आगे बढ़े उनको साथ लेके चलने की उनके अंदर विशेषता रहती है, वो उनको साथ लेके चल सकते हैं। तो ये अध्यात्म से वो सफलता की ओर जाने का एक और सूत्र है। यदि आप, और दूसरी, आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं। यदि आप आध्यात्मिक आदमी है तो निश्चित ही, देखिए प्रत्येक आदमी यहाँ साथ कुछ जाएगा नहीं। यदि साथ कुछ गया होता तो आज तक यहाँ ईंट पत्थर कुछ नहीं बचते, इतने लोग पहले बहुत जा चुके हैं। लेकिन हम कम से कम कुछ एक उदाहरण छोड़ के जाएं। हम कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक, हम कुछ भी छोड़ें, एक अच्छे विचार के द्वारा, एक अच्छे हमारे व्यवहार के द्वारा, एक हमारे आचरण के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे कल पर्यावरण दिवस था, तो लोग पर्यावरण दिवस के दिन तो लिखते हैं पर्यावरण दिवस, लेकिन पर्यावरण के लिए करते कुछ नहीं है। लेकिन हमें करना भी पड़ेगा, हमें जेनरस होना पड़ेगा। यदि आध्यात्मिक आदमी के अंदर ये गुण होते हैं, और वो उनकी सफलता में वो सहायक होते हैं फिर। और पांचवा पॉइंट मैं बताऊंगा कि एकाग्रता और समर्पण। ये 5 पॉइंट हमारे जीवन में, हम किसी भी काम में लगे, आप एक दुकानदार हैं, आप एक व्यवसायी हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक पायलट हैं, आपका कुछ भी, किसी भी फील्ड में आप हैं, इन विच फील्ड यू आर, डजंट मैटर, बट इफ यू आर नॉट कंसंट्रेट व्हाट यू आर डूइंग, और इफ यू आर नॉट डेडिकेट इन योर वर्क, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका ये जितना आप डेडिकेशन के द्वारा आप पूरे समाज को, आने वाली नई पीढ़ी को आप जो कुछ दे के जा रहे हैं, वास्तव में वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। और केवल आपकी उन्नति के में ही सहायक नहीं होगा, वो अपितु समष्टि की उन्नति में, पूरे देश की उन्नति में, पूरे विश्व की उन्नति में सहायक होगा। यदि आप आने वाले शिक्षा के जगत में, शिक्षा देखिए एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन करने में, किसी के भी जीवन में उसकी शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। तो आप ये एपीजे शिमला यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ डॉक्टर साहब जैसे और माथुर जैसे बड़े दिव्य
जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं शिक्षा के प्रति और एकाग्र हैं, ये निश्चित ही ये गुण, ये आध्यात्मिक आदमी के ही गुण हैं। ये एक स्वभाव है, अध्यात्म आपका स्वभाव है। यदि आपके अंदर ये गुण है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य ही सफल होंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी धर्म में हो, आपके अंदर यदि, जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि परम पुरुषार्थ और आत्म परमात्मा के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें यदि हमारे जीवन में हम उतारेंगे तो इनसे निश्चित ही वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। और बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, शायद टाइम भी लगभग, मुझे ज्यादा समय, और भी 2 स्पीकर और हैं, तो मेरे कहने का केवल तात्पर्य ये है कि स्पिरिचुअलिटी सक्सेस को ले जाने, सक्सेस की तरफ मार्ग आपका स्वभाव निश्चित ही आपको सफलता देगा, आपको सक्सेस देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो टॉपिक चुना है डॉक्टर साहब ने, ये निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी मंगल कामना करता हूं। और जो भी श्रोता हैं और जो दर्शक हैं अभी इसके माध्यम से, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज ये कोरोना की स्थिति, जो महामारी है, इसके समय में बच करके रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बोध जी। आपने भी इतने अच्छे पॉइंट्स हमारे श्रोताओं को दिए। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा जो मैंने आपके पॉइंट्स लिखे। जिन लोगों ने अगर मिस कर दिए हो, ये 5 पॉइंट्स बहुत ही अहम, अपनी जिंदगी में उतारने वाले ये 5 पॉइंट्स हैं और ये मैं इंग्लिश में बोलूंगा। पहला पॉइंट, फाइंड योरसेल्फ, अपने आप को ढूंढे, अपने फाइंड द जर्नी इनवर्ड्स, अपने अंदर झांकें। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक आपका ट्रू पर्पस आपका नहीं आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, गिव योर 100%, डू इट टू योर बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज, whatever you do. Third point, awareness. Be aware of yourself and your surroundings. Choose the best path, not the easiest path. Fourth, gratitude and generosity. Always be thankful and always be grateful. Leave something for the next generation. Fifth point, focus and dedication towards whatever you do. स्वामी जी, ये 5 पॉइंट मेरे ख्याल से सभी बच्चों के, सभी शिक्षकों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे और मैं ये कामना करता हूं कि सब लोग अपने लाइफ में ये 5 पॉइंट धारण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं अनिल कुमार सिंह साहब का, जो कि विशेष सचिव हैं गृह विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गोष्ठी में। और मैं, क्योंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं और आज जिस महामारी के बीच में हम लोग सब हैं उसके बिल्कुल मध्य में है गृह विभाग, जिसने की शायद सबसे ज्यादा मेहनत और जिसको हम सबसे ज्यादा इस वक्त मेहनती विभाग मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने और पुलिस विभाग ने कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा हम लोगों को सेफ रखने के लिए। और आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं इस क्षेत्र में और इस वक्त, ये हमारे सारे श्रोताओं के काम जरूर आएगी। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अनिल कुमार जी। कुलदीप जी, प्लीज उनको अनम्यूट करिए और मेन स्क्रीन पे लाइए। जी जी, नमस्कार सर। स्वागत है आपका सर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों ने रखा है, अध्यात्म से सफलता
ये बहुत ही सुंदर विषय है। यहाँ पर सर्वप्रथम अध्यात्म के बारे में क्लैरिटी आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मिक क्षेत्र, जिसे हमारे उपनिषदों ने आत्मा को दो खंडों में देखा है, एक परम आत्मा और एक जीवात्मा। इस तरह से एक ही आत्मा परमात्मा के रूप में है, उन्हीं के अंशभूत सभी जो जीवात्माएं हैं वे हैं। इसमें हमारे कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु बुद्धि सारथी मनः प्रग्रहम एवच। अर्थात ये आत्मा जो है रथी है, अर्थात रथ का स्वामी है, और रथ उसका है या शरीर जो कि उसके साधन के रूप में है। और इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं वही घोड़े के रूप में है जो रथ में जुड़े हुए हैं। बुद्धि सारथी का काम कर रहा है और मन उसका लगाम है, जिसका स्वामी आत्मा हम उसका संचालन करते हैं। तो अध्यात्म में हमें ये देखना होता है कि हमारी आत्मा जो है वो अपने पूर्ण स्वामित्व से चल रहा है या नहीं, उसे इंद्रियां कहीं भटका तो नहीं रहे हैं। तो सर्वप्रथम अध्यात्म में हम आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि की ओर जाते हैं। इसलिए जो विषय विकार हैं, जिसकी ओर इंद्रियां आकृष्ट होती हैं, उन पर पहले विजय प्राप्त की जाती है। और इसे अष्टांग योग में स्पष्ट किया गया है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एकदम आवाज आ रही है, क्लियर है। तो इसे योग के माध्यम से अध्यात्म को पातंजल योग दर्शन में बताया गया है। और योग से अर्थ है कि हम परमात्मा से जुड़े, उनसे जुड़े रहें, योग युक्त रहें। अपना जो हमारा मूल अंश है परमात्मा है, जिनकी हम संतान है, जिनके अंश हैं, उनसे जुड़े रह करके हम अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनका संपादन करें। हमारे लक्ष्य स्पष्ट किए गए हैं शास्त्रों में, जो कि पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, और अर्थ जो है वो साधन है, साधनों से भी हम संपन्न बने। और काम अर्थात जो कर्तव्य कर्म हमारे हैं उनको हम ठीक से करें। इसे करते हुए हम आत्म कल्याण और जन कल्याण के कार्य को सिद्ध करें। तत्पश्चात हम आत्मा को मुक्त अर्थात जो विषय विकार हैं इनसे मुक्त करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या से मुक्त करते हुए अपने परम अंश परमात्मा से संयुक्त हों, उनका सानिध्य प्राप्त करें। इस प्रकार से ये पुरुषार्थ चतुष्टय हमारा लक्ष्य है। इसे प्राप्ति के लिए विभिन्न पंथों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं, जो कि हमारी हर प्रकार की सफलता में साधक है। भौतिक सफलता आजकल ज्यादा लोग समझते हैं, तो भौतिक सफलता अच्छी बात है, ये एक साधन के रूप में है। हम साधन संपन्न बने, लेकिन साधन का जो लक्ष्य है उसको हम अवश्य प्राप्त करें। जिस लक्ष्य के लिए साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों को इकट्ठा करने के बाद उनका हम सदुपयोग करें, और वे हमारे साधना में सहायक बने, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी सिद्धि में सहयोगी बने। इसका ध्यान रखना होगा। इसीलिए हमारे इथिकल वैल्यूज बनाए गए हैं, और इनके द्वारा हम हर अपने कर्तव्य कर्मों में वैल्यू ऐड करते हैं। उससे यदि भटकाव होता है तब वो हमारा कर्म जो है निरर्थक और निषिद्ध कोटि में चला जाता है। तो हम सर्वप्रथम अपने को आत्मा निश्चित करें। आत्मा निश्चित करके अपने इंद्रियों पर पूर्ण विजय करते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या विजय करते हुए, हमें जो भी कर्तव्य कर्म मिले हैं, जो भूमिका मिली है, उसको पूरी निष्ठा के साथ करते हुए हम जन कल्याण करें।
हमारे लक्ष्य को संक्षेप में ये बताया गया है, आत्मना मोक्षार्थम जगद हिताय च, अर्थात सर्वप्रथम आत्म कल्याण करना है। यदि हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी, सशक्त रहेगी, तभी हम जन कल्याण के कार्यों में भी सिद्धहस्त हो सकेंगे। इसलिए आत्म कल्याण, आत्म शुद्धि पर पहले बल दिया गया है। इसे सिद्ध करते हुए हम आगे जन कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं और इसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और जो अभी सफलता में मूल रूप से बात आती है वह एकाग्रता की आती है। जो जितना अपने को एकाग्र कर पाता है किसी भी चीज में, उतना उसमें वो सफल होता है, चाहे वह शोध का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो या किसी भी कर्तव्य कर्म में हो। हमारी तल्लीनता, निष्ठा ही हमारी सफलता का आधार बनता है। और इसलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो अंतर है वह इसलिए है कि कोई अपने को अधिक एकाग्र कर पाता है और कोई अपने को कम एकाग्र कर पाता है। तो इस एकाग्रता का मूल मंत्र अध्यात्म में समाहित है। आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने को पूर्ण रूप से एकाग्र कर सकते हैं, योग युक्त कर सकते हैं। जो दैवी गुण है, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनको अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जो कि समाज और देश विश्व के कल्याण में हमारा सहायक हो सकता है। हम बिना बाधा के अविरत गति से अपने पूर्ण शक्ति के साथ हम आत्म कल्याण और जन कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकते हैं और यही वास्तविक सफलता है। सफलता से मूल अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाएं, अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऊंचाई तक ले जाएं और इस प्रकार से हम जन कल्याण को अधिकतम सिद्ध करें, अधिक से अधिक हम समाज में अपना योगदान करें। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बताए गए हैं। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि जो साधन बताए गए हैं, इन सब पर चल करके हम अपने को पूर्ण सशक्त बना करके जो हमारे कर्तव्य कर्म है या जो लक्ष्य हैं उस पर हम पूरी शक्ति के साथ चलते हैं और उससे जन कल्याण निश्चित रूप से संपादित होता है। हमारे मार्ग में कहीं भी भटकाव नहीं हो सकता है। ये अध्यात्म हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है और अध्यात्म के द्वारा हम ये निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कार्य हर प्रकार से जन कल्याणकारी होगा और आत्म कल्याण को भी सिद्ध करेगा। धन्यवाद। सुन पा रहे हैं कि नहीं अभी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संक्षेप में इतना रखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात कह दी और हमारे उन दर्शकों के लिए जो हिंदुस्तान के बाहर हैं, फॉर द पीपल हु आर आउटसाइड द कंट्री हु आर नॉट so familiar with the language of Hindi, I will just read out the salient points that Shri Anil Kumar sir has so nicely put forward. One, body should be treated as a vehicle to achieve success. Two, the materialistic things may be taken into account and used, but with lot of moderation. Three, our aim should be first to cleanse ourselves, our own spirit, and only once our own spirit is cleansed, we can clean the society and the world. The next point that he so nicely said is focus and dedication are the key to success. And we can use spiritualism to develop. We can use spiritualism to develop focus and concentration so as to do good to the society. So, with this, I thank you, sir. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय अपने इतने बिजी शेड्यूल, मुझे पता है आप कितना व्यस्त होंगे इस वक्त, मगर इतने बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला और हमारे सभी छात्रों को, शिक्षकों को आशीर्वचन दिए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।
हमारे थैंक यू सर। हमारे अगले स्पीकर हैं श्री जेपी सिंह साहब, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आईजी के रूप में पोस्टेड हैं। नमस्कार जेपी सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आपको। एक बार कुलदीप जी प्लीज जेपी सिंह सर को जरा अनम्यूट करिएगा प्लीज। Thank you, Mathur Sahab. First of all, I am thankful to you for giving me this opportunity. आज का जो वेब सत्संग का विषय है, आध्यात्म से सफलता की ओर, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विषय है, जो न केवल प्रत्येक छात्र को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में प्रभावित करता है। इतने सुंदर टॉपिक को चुनने के लिए मैं आपके विश्वविद्यालय को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे से पहले अनेक विद्वान वक्ताओं ने इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना पक्ष रखा है। उनके पक्ष से न केवल मैं अत्यंत लाभान्वित हुआ हूं, बल्कि साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आखिर का वक्ता होने की वजह से कई उनके बिंदु जो मेरे वार्ता में होने चाहिए थे, वो ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। और इस विषय पर पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। सफलता हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको सफलता चाहिए, क्योंकि सफलता से धन, यश, कीर्ति सब प्राप्त होती है और जीवन में वो अपने को सुखी महसूस करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि सफलता को कैसे हम दीर्घायु और अस्थायी बनाएं। हर व्यक्ति की सफलता का अलग अलग मापदंड है, जैसा कि स्वामी जी ने पहले कहा था। इस बिंदु पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल एंड अचीवमेंट ऑफ दैट इज सक्सेस। जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, जब उसकी प्राप्ति वो कर लेता है तो अपने को सफल महसूस करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाने के बाद आदमी सोशल नीड की तरफ बढ़ता है, उसके बाद इकोनॉमिक नीड की तरफ बढ़ता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। सो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, सफलता का उसका मापदंड भी बदलते जाता है, और एक स्टेज में आकर जब वो अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज महसूस करता है, तब वो उसको लगता है कि मैं अब पूरी तरह से सफल हो गया। अब सवाल उठता है कि आज जो व्यक्ति सफलता की दौड़ में, आज व्यक्ति और समाज दोनों सफलता के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल है। इस अंधी दौड़ की वजह से भले तात्कालिक रूप से सफलता मिलती है, लेकिन व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों अनिश्चितता और अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी तनाव है।
सांसारिक रूप से भले व्यक्ति सफल दिखता है, लेकिन उसके जीवन में अवसाद है, और जहां अवसाद है वहां न सुख है और न शांति। ये सब क्यों हो रहा है? सांसारिक रूप से सफल होने के बावजूद व्यक्ति के जीवन में अवसाद है, परिवार में हिंसा है, परिवार में वैमनस्य है, समाज में अशांति। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में आध्यात्म नहीं है। जब तक व्यक्ति के जीवन में और हमारी सामाजिक जीवन में, हमारी व्यवस्था में आध्यात्म नहीं आएगा, तब तक हम भौतिक तरक्की तो कर सकते हैं, लेकिन हम सुख और शांति को लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकते। आध्यात्म की, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने व्याख्या की, आध्यात्म अधि प्लस आत्म भीतर की ओर यात्रा है। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से विमुख होकर भीतर की यात्रा करता है, जिसमें ज्ञान के प्रकाश से वो अपने मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को जानने के प्रयास करता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने आध्यात्म पर बोला है कि जैसे अपने स्वभाव को जानना ही अध्यात्म है, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अपने स्वभाव को जानना ही अध्यात्म है, लेकिन स्वयं को जानना ये इतनी छोटी बात नहीं है। जितने सरल और छोटे शब्दों में भगवान कृष्ण ने कह दिया, वो इतना सरल नहीं है। स्व कौन है, मैं कौन हूं, व्यक्ति कौन है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या मेरी मंजिल है, उस मंजिल तक जाने का रास्ता क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, संसार क्या है, माया क्या है, प्रलय क्या है, पुनः रचना क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, मोक्ष क्या है। ये सब तमाम प्रश्न, इस अंतर यात्रा से व्यक्ति को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। और जब व्यक्ति को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, तो उसकी आत्मा जो पहले अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत थी, वो एक परिष्कृत आत्मा होकर निकलती है। उस परिष्कृत आत्मा का जो विस्तार होता है, उसकी चेतना का जब विस्तार होता है, तो उसको लगता है जैसे संसार के सारे प्रश्नों के उसे उत्तर मिल गया। अब वो व्यक्ति नहीं, अपने को पूरे समष्टि का एक अंग समझता है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव जागृत होते हैं। वह जियो और जीने दो के भाव से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन से हिंसा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब न केवल खत्म हो जाता है, संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है, और यहां तक कि इस प्रकृति में जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, पदार्थ हैं, सबके साथ वह एक ऐसा तादात्म्य स्थापित करता है जैसे किसी से कोई बैर नहीं, और वो सबसे प्रेम करने लगता है। यही ज्ञान की परम अवस्था है। इस ज्ञान की परम अवस्था को वो आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है, ना मैं कभी उसके लिए समाप्त होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी समाप्त होता है। जब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान इस तरह से जागृत हो जाता है, तब वह अपनी
इस प्रकृति से, इस व्यवस्था से अपनी आवश्यकताओं तक ही लेता है और व्यवस्था को ज्यादा देने का प्रयास करता है। जैसे आवश्यकता के अनुसार अगर उसे ईंधन चाहिए तो वो लकड़ी तो लेता है, लेकिन वो पेड़ लगाने की भी बात करता है। पर्यावरण की चिंता उसे बहुत सताती है। वह स्वयं के साथ साथ सभी जीवों से प्रेम करता है और इस प्रकार वह एक व्यक्ति होते हुए भी संपूर्ण व्यापक ईश्वर का दीदार करता है और उसका हृदय इतना व्यापक बन जाता है कि वो व्यक्तिवादी से समष्टिवादी बन जाता है। न वो किसी की सफलता को चुनौती देता है और न ही किसी से वो कोई द्वेष रखता है। ऐसी आध्यात्मिक अंतरयात्रा जब व्यक्ति में हो जाती है तो वो सांसारिक रूप से कार्य करते हुए न केवल स्वयं सुखी होता है बल्कि पूरी व्यवस्था को भी उससे सुख होता है। इस समय मैं एक उदाहरण महाभारत के अर्जुन और कृष्ण से देना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिया उसका मूल कारण ये था कि अर्जुन धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर थे और इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपना सारथित्व प्रदान किया। वो कहते हैं अगर भगवत गीता के पूरे पूरे श्लोकों का निचोड़ निकाला जाए तो प्रथम श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, और जो अंतिम श्लोक है भगवत गीता का जिसमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भवति ध्रुवा नितिर मतिर्मम। यहाँ जो अंतिम शब्द मम है और पहले श्लोक में प्रथम शब्द धर्म है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बनता है मम धर्म। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है मम धर्म। वो प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि हे जीव, हे अर्जुन, तुम मेरे धर्म पे चलो। और जो धर्म उन्होंने स्थापित किया वो धर्म है कि अपनी अंतर यात्रा से जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हो, ये ज्ञान जो है आपका धर्म और आपके कर्म को दर्शाएगा और उस मार्ग पे जब चलोगे तो तुम्हारी सतत विजय होगी, क्योंकि वहां पर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा और तुम्हें मेरा सारथित्व प्राप्त होगा। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जैसे जो कमजोरियां हैं उनकी बात की। इस पर भी भगवान ने विजय की बात की है और उन्होंने कहा है त्रिविधम नरक सेदम द्वारम जातम आत्मनः कामः क्रोधश्च लोभश्च तस्मात् एतत् त्रयं जयेत्। ये सब तमाम चीज शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया वो इसलिए दिया कि अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत थे और उनको जगह जगह पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। जब इस तरह का मार्गदर्शन आदमी को मिलता है तो अपने वो सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और इस संसार से परे जो एक परलोक, इहलोक है और एक परलोक है, परलोक को भी वो सुधारता है। दोनों लोकों में विद्या से सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो इस संसार में भी और दूसरे संसार जो परलोक है उसमें भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आध्यात्मिक ज्ञान से इस संसार में भी और उस संसार में भी दोनों लोक में कल्याण होता है। जैसा कि 4 पुरुषार्थों की बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैसे तो मोक्ष सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने सबसे प्रथम लक्ष्य धर्म बनाया है और ये प्रथम लक्ष्य इसलिए बनाया है क्योंकि धर्म के ही आधार पर, आधार मजबूत होना चाहिए,
धर्म के आधार पर ही धर्मयुक्त तरीके से जब आप अर्थ कमाएंगे, धन कमाएंगे और धर्मयुक्त तरीके से ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका आधार धर्म नहीं है तो आपका धन जो है वो भी धर्मयुक्त तरीके से संचित नहीं है, और जब गलत है तो उससे जो आपकी कामनाएं जो पूर्ति हुई है वो भी अधार्मिक है, इसलिए आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए जीवन का आधार धर्म है और धर्म का आधार आध्यात्मिक ज्ञान है। जब व्यक्ति के जीवन में ये अंतर यात्रा शुरू होती है और आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से अपने उस मंजिल को निर्धारित करता है जिसको वो पाना चाहता है, और उस नियत मंजिल को, हमारे एक वक्ता ने कहा कि जो भी काम आप करिए उसमें दक्षता करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका लक्ष्य भी आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य गलत है तो तात्कालिक रूप से उसकी पूर्ति होगी, लेकिन वो विनाशकारी होगा, वो दीर्घायु नहीं हो सकता। भस्मासुर का उदाहरण दिया गया। उसी तरह से आजकल विष्णु पुराण चल रहा है, आप देखिए हिरण्यकशिपु ने लक्ष्य की प्राप्ति की, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहा, एक कठिन वरदान भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका अंत बहुत भयावह हुआ। इसलिए लक्ष्य निर्धारण भी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आपका उत्तम होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणो। आपका जो लक्ष्य है वो निश्चित होना चाहिए, धर्मानुकरण, धर्म के अनुसार होना चाहिए आपका लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य धर्म के अनुसार नहीं है तो उसकी प्राप्ति के बाद भी आपको कष्ट होगा और वो आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। सो व्यक्ति को जीवन में धर्मयुक्त तरीके से अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, और जो मौलिक सिद्धांत हैं कोई भी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने का, जिसमें फोकस की बात है, जिसमें हार्डवर्क की बात है, अवेयरनेस की बात है, कंसंट्रेशन की बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, इस सब का पालन करते हुए आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस तमाम चीजें जब आध्यात्मिकता से जुड़ी रहेगी तो लक्ष्य प्राप्त करके भी आपका जो व्यक्तिगत, आपकी जो मंजिल है वो समाज के साथ आत्मसात होगी। वो समाज के लिए आप एक एसेट बनेंगे, समाज के लिए, देश के लिए एसेट बनेंगे, परिवार के लिए एसेट बनेंगे। और अगर जहां पर ये ज्ञान का अभाव है, आध्यात्मिकता का अभाव है, तो व्यक्ति, जैसे कहा जाता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप व्यक्तिगत तरक्की करके अगर अपने परिवार, राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए एक आदर्श नहीं बने, एक आप एसेट नहीं बने, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सफलता से भी ज्यादा जरूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति प्राप्त करें, और जो सफलता के मूल मंत्र हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताए हैं इनका अनुकरण करते हुए, जिसमें फोकस है, हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है, कंसंट्रेशन है, ग्रेटिट्यूड एंड जेनरोसिटी है, इन सब का पालन करते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, और जिससे कि स्वयं का कल्याण हो, हमारे समाज और देश का कल्याण हो, और स्वयं का कल्याण इस जीवन में भी हो, और इस जीवन के बाद जो जीवन है उसमें भी जब हम जाएं तो उसमें भी हमारा कल्याण हो। इसी के साथ मैं सबको पुनः धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः एपीजी शिमला विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि इतना सारगर्भित विषय पर आपने इस गोष्ठी का आयोजन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह सर। ये नजरिया एक बड़ा फ्रेश नजरिया था, जिसमें आपने बहुत सरल भाषा में ये बताया कि कैसे अपना लक्ष्य चुनने से पूर्व आध्यात्म को जरूर समझना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लक्ष्य हमारे सही भी हो सकते हैं, लक्ष्य हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो सही लक्ष्य चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वेक अवेक राइज एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर गोल्स आर अचीव्ड। और it is absolute resolve which is the most important thing probably today, and with that absolute resolve a sense of spiritualism which is also very very important. ये हमारा ही देश है जहां इतनी सारी धार्मिक चीजें, इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हम लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि जरूर आप लोग कोई ना कोई ग्रंथ, अब आजकल बहुत सरल भाषाओं में ये ग्रंथ बाजार में उपलब्ध हैं, आप लोग जरूर पढ़िए और हम लोगों के जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे उनका ज्ञान जरूर अपने अंदर ढालिए। ये कहते हुए मैं सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोग्राम को विराम देने के लिए आगे बढ़े। एक हम्बल सबमिशन है, डॉक्टर अनामिका मल्होत्रा जी जो स्पिरिचुअल चैनल चलाती हैं और शिमला में स्पिरिचुअलिटी के लिए जानी जाती हैं, सिटी चैनल की मालकिन है, वो हमारी साथ जुड़ी हुई हैं। अगर उनके दो शब्द हम लोग सुन लें, उन्होंने बड़ा अनामिका मल्होत्रा सौभाग्य होगा। यस प्लीज, अनामिका मल्होत्रा जी प्लीज। अनामिका मल्होत्रा। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और आपने प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रखा है और बहुत ही सब उम्दा बोले इस गोष्ठी में। और लेकिन इसमें मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, जैसे एकाग्रता पे कवर हो चुकी है, अपना लक्ष्य साधने की बात हो चुकी है। पर यदि अगर ये बच्चे कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि ध्यान क्या है, स्पिरिचुअलिटी का बेसिक क्या है। बेसिक है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें क्यों करनी चाहिए? हमारे दिमाग में जिसे चैटर बॉक्स माइंड किया जाता है कि हमेशा चैटर चैटर करता रहता है। तकरीबन 60,000 से 72,000 हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट चलता रहता है। कंटिन्यूएशन ये सेटल नहीं होता, तभी हमारा दिमाग एक जगह पर स्थायी रूप से लग नहीं पाता और बच्चों को उनका लक्ष्य निर्धारित करने में प्रॉब्लम आती है। यदि बच्चे इस चीज को सोचे कि हमारा माइंड जो कंटिन्यूअसली चैटर कर रहा है, यदि हम उसको एक डायरेक्शन दे सकें, यदि हम इसको एक रूप दे सकें तो कितना अच्छा हो। और ये चीज हम ध्यान के माध्यम से सीखते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, मन शांत होने लगता है। जिस प्रकार चलते हुए पानी में हम पानी डालेंगे तो रिपल्स नहीं आएंगे, जब मन शांत होगा तो जब हम उसमें करंट भी डालेंगे तो रिपल्स फैलते हैं। तो थॉट जब शांत होता है तभी उसको स्ट्रेंथ मिलती है। इस स्ट्रेंथ को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण है कि कोई भी चीज एक अंधकार में ही उपजती है। जैसे कि एक बीज है, जब वो पौधे में लगाया जाता है तो अंधेरा होता है, उसको शांति चाहिए तभी वो उपज कर आ सकेगा। माता के गर्भ में जब बीज रहता है वो तभी पनप सकता है। यदि हमारे थॉट का प्रोसेस जब ध्यान में बैठेगा चुप करके, तभी उसको लक्ष्य अपना नजर आ सकेगा। तो इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ कहूंगी कि अपने शब्दों पे बहुत जोर देना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं संसार में, अन्यथा बोलते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि शब्द ऐसी चीज है जो हमारे पास वापस लौट कर आता है। कहते हैं जब हम एक वाणी को बोलते हैं तो पूरे अर्थ यानी कि धरती का एक चक्कर लगाकर वो आपको सुनाई देता है। एक शब्द में इतनी ताकत है। इसे हम यूं कहते हैं, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक करे है घाव। तो शब्द के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी को घाव दे सकता है या किसी को ऊर्जा दे सकता है कि हाँ तुम कर सकते हो। कहते हैं ना, हाउ इज द जोश, यस सर। तो जोश को बढ़ा सकता है। शब्द हमें कैसे यूज करने चाहिए, एफर्मेशन की पावर क्या होती है, हमें क्या अफर्म करना चाहिए अपने साथ जिंदगी में कि हम जिंदगी से क्या
चाहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हो तो मैं चाहूंगी कि ऐसी क्लासेस को वो जरूर अटेंड करें, चाहे वो मेरे माध्यम से अटेंड करें, चाहे वो किसी के माध्यम से अटेंड करें, ताकि उन्हें अपने आप को बल देने के तरीके आए। हाउ कॉन्शियसनेस, हाउ कैन बी सो अलर्ट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि हमें अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए पहले आप रेडी होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पीछे ऐसी तैयारी नहीं है। हम लोग ऐसे तैयार होकर आए हैं, तभी हमें उन्हें सरलता से आगे लेके जाना है। मेडिटेशन, एफर्मेशंस, सक्सेस, जब इंसान कुछ अचीव करने लगता है तो अपने आप इन चीजों की तरफ उसका रुझान बढ़ने लगता है। तो और मैं अपनी वाणी में ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को लास्ट मोमेंट पे स्पीकर जैसे बुलाया गया है एंड आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी अप। तो एक पंक्तियों के साथ अपने स्टूडेंट्स को, अगर यदि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हो तो इतना जरूर बोलूंगी कि बाधाओं की लंबी कतार देखकर भी जिसका मन ना घबराए, बाधाओं को भी उसके पास आने में बाधा होती है। फिर कहूंगी, नजर का फेर है तेरा साथी, नजर बदल के देख जरा, नजर का फेर है तेरा साथी, नजर बदल के देख जरा, कि बाधा ही ऐसा पल दिखा जाएगी, तेरे लिए रास्ता सुनहरा बना जाएगी, कि कलिक की गोद में ही जन्मता है हीरा, आग में तप करके ही निखरता है सोना। रास्ते की थकान से कभी डरना नहीं, कभी झुकना नहीं, मुड़ पीछे देखना नहीं, कि आंख केवल लक्ष्य की ओर हो तो कायनात तुझे खुद ही उससे मिलवा जाएगी। बाधाओं की लंबी कतार देख के घबराना नहीं। तो नमस्कार, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thank you थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anamika ji. you, Last sir. of all, we got speaker and speaker. And she is Christian Bhakt, and she has many YouTube channels and keep. So, madam, thank you that you have kind words with spirituality. Yes, that is very important to have a control on your voice and Thank you so much. what words. So you must have a control on your words. The words which you speak is very important, that how it is going to impact other people. So thank you for this. So we have been listening many speakers. We have been listening many preachers, from spiritual leaders to bureaucrats, then IPS, then general public, general human being. So it has been a very nice explanation, very simple explanation of spiritualism, that nothing to do, just you think simply that what focus, what objective you need to achieve, and how you're setting goal through religious way. There must be a religion while you setting your goal. So religion is must, that it should be according to spiritualism. So there is so many other words and many other sentences and many other success parameters have been discussed by different speakers, eminent speakers today. So with these words, I just request to our Honorable Vice Chancellor to please have some concluding words on this today's webinar before we conclude this session. Dr. Chaudhary, please. Thank you, Dr. Kuldeep. It was a wonderful program, beyond to our expectations, and I believe that what I have learned instantly, the gratitude and generosity. So let us express our gratitude to all the participants, and I am very thankful. सादर नमन है प्रणव आनंद सरस्वती महाराज जी का। स्वामी जी, आप महामंडलेश्वर हैं, और इतने होते हुए आपने हमारे विश्वविद्यालय पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे इतना आशीर्वाद दिया, इतना समय दिया। मैं देख रहा हूँ आप पहले वक्ता थे और पूरे समय एकाग्रता से सुनते हैं। हम सब तो आपके पास आपसे सुनने के लिए आते हैं, आज आपको भी थोड़ा सुनना पड़ा। और आपने देखा ही होगा जो हमारे जो आईएएस थे अनिल कुमार सिंह जी और जेपी सिंह जी ने, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दे आर सेंट, नॉट द ब्यूरोक्रेट्स, and that you have listened. And I am very surprised by Dr. Rajat Mathur ji, the way he has translated. And I am looking, my Dr. Tony Atkins from United Kingdom, Stafford, is still with us. And so many international participants.
Anand Bose Chaitanya ji is himself from the Lithuania, and he is continuing. I believe Dr. Tony would have definitely faced some problem, but he is a frequent traveler to the India, and little bit he might be started understanding. So I sorry for any inconvenience, and I'm thankful to all of you. I see the August gathering. I see the different very high level of the academicians, the vice chancellors of couple of universities, and the dean, and so many academic fraternity doctors from the medical fields, they have joined. So we are very, again, we express our sincere gratitude, and thanks for your generosity, and thanks to, I mean to say, supporting us. And I'm thankful to JP Singh Sahab, IG Sahab, आपने हमें compliment दी, we have chosen a right topic. It's all because of our Chancellor Aura and his blessings and his guidance. So मुझे ऐसा लगता है जो कि ये जो हम लोगों ने किया, मैंने इसका नाम वेब सत्संग रखा। आज के इस टाइम में टेक्नोलॉजी हैज हेल्प अस टू मीट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, और सत्संग जो एक प्रोसेस है, अनामिका जी तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है। एक लास्ट में आप ये मत बोलो जो आप लास्ट में आए, बहुत प्रेशियस ब्लेसिंग्स हैं। आप शिमला में हैं, and we have listened to you, and we see your aura and positivity, so we look forward to all of you. स्वामी जी आपका सादर नमन है, आनंद बोस जी चैतन्य जी आपका सादर नमन है। आप लोग अपना इतना प्रेशियस टाइम देते हो। आपकी आशीर्वाद की जरूरत हमारे पूरे परिवार को है, पूरे विश्वविद्यालय को है, और इस पूरे समाज को है। मेरे दूसरे संत भी मेरे साथ हैं, अनंत चौहान जी जो हमारे एडवाइजर है, और वो मैं देख रहा हूँ वो सुनने, डॉक्टर रमेश जी चौहान जी हैं जो साईं के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये सब कुछ है, सुनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबों को धन्यवाद है। और मैं तो फिर लास्ट भी यही करता हूँ, जो मेरी तो बस कोई मेरे किसी तरह की मैं अपने में कुछ नहीं समझता हूँ। मैं पूरी तरह से आश्रित हूँ अपने परमात्मा पे, और वही राह दिखाता है। और मुझे जो विश्वास जो जेपी से अपने एक वक्ता जी ने, अपने आनंद बोस चैतन्य जी ने शायद, या अपने पटम आनंद जी ने जो बोला था, जो कि युद्ध की बात, जो परमात्मा की शक्ति, मेरा तो यही सबको कहते हैं, अगर तुमको परमात्मा पे समर्पण है तो परमात्मा तुम्हारी लाज रखेंगे और तुम्हारी जय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड वी एक्सप्रेस highest gratitude, sincere gratitude to all of you, and especially thankful to Dr. Rajat Mathur ji, Chancellor, to guiding us and to enlightening us. Sir, I was knowing that a kind of enlightenment you have, and that enlightenment we used to get, and that reflection comes to the Epic Well Simla University since beginning. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. Let me thank you, Garvanand Saraswati Maharaj ji first. एक बार आशीर्वाद उनसे ले ले, स्वामी जी का आशीर्वाद हम लोग सब सुन ले, एक बार आशीर्वाद चंद हमें दे दे। और स्वामी जी महाराज प्लीज, स्वामी जी का आशीर्वचन हमें मिल जाए अंत में। बहुत अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि वो मेरे लिए भी बहुत सारी ज्ञानप्रद बातें हैं, और मैंने भी इस आपके सत्संग से, वेब सत्संग से बहुत कुछ सुना। और मैं आपका जो भी शिमला यूनिवर्सिटी का जो ये परिवार है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसी प्रकार हमें भी सीखने का आप अवसर प्रदान करते रहेंगे, और आप ऐसे जो भी प्रोग्राम आप कभी करेंगे तो मैं अवश्य आपको समय दूंगा। पूरा आपका मेरे ऊपर अधिकार है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रदान कर रहा हूँ। हरि ओम। Thank you Swami ji for your blessings. Thank you. I really thank you Swami ji for your blessings and your enlightenment, that belief in Almighty is very important. And I thank Chaitanya ji, Anand Chaitanya ji, for your enlightenment, that yes, purpose, with you have a purpose, then you have a life. So this word is very important for all us. And I also really thank you, IAS Anil Kumar Singh ji, that work is worship, self-analysis is very important, self-evaluation is very important. I really thank you, sir. I thank you, JP Singh ji, for your kind words, that first you have to be
personally spiritualize, and then you have balance between society and individual spiritualism. My all thanks to our moderator, Dr. Rajat Mathur sir, for your wonderful moderation. And lastly, Anamika madam, that wonderful enlightenment you have given, that meditation is very important. So I really thank you. I also thank you, Sumit Sethji, and all other participants that have very wonderful session with all of us. Thank you so much. So please now allow me to end this session. Thank you.